virtual webinar on importance of soft skill in today's age and time, organized by Department of Computer Application in collaboration with IQSC. Importance of this webinar are current industry demand for soft skill, why training of soft skill is important in the post-COVID world, the details of resume building process and action plan to land an earth interview, importance of analytical and comprehension skill and how one can help develop it, how future theory is helping to get equipped with these soft skills, closing remark and next steps. We shall commence the webinar officially by inauguration function by auspicious hands of Honorable Principal Dr. L.D. Kadam sir. In this virtual inauguration, we will pay tribute to founder of the Rayat Institute, Padma Bhushan Dr. Karmavir Bhaurao Patil and playing Rayat Git in his honor. नव्या युगाचा मांस आता झडतो आहे वटवृक्षाच्या विशालतेचा मोहन भाला पडतो आहे मधून नव्या युगाचा मांस आता झडतो आहे वटवृक्षाच्या विशालतेचा मोहन भाला पडतो आहे मधून नव्या युगाचा कर्मवीरांचे ज्ञानपीठ हे शक्तिपीठ ही ठरते आहे शाहू फुल्यांचे समानतेचे तत्वमानसी मूर्ते आहे धर्म जातीच्या पादगांधीचे मूल्य मानवी जपतो आहे रयते मधून नव्या युगाचा माणूस आता घडतो आहे वटवृक्षाच्या विशालतेचा मोहन भाला पडतो आहे रयते मधून नव्या युगाचा गरिबासाठी लेणी मोडून लक्ष्मीवती झाली आई कमवा आणि शिका मंत्र हा करुणाईला प्रेरक होई स्वावलंबी वृत्ती ठेवून ज्ञान साधना करतो आहे नव्या युगाचा माणूस आता घडतो आहे वटवृक्षाच्या विशालतेचा मोहन भाला पडतो आहे रयते म्हणून नव्या युगाचा दलितांसाठी अण्णा तुमची झिजली चंदन गाया अनाथ जीवा सदा लाभली मातृहृदयी तुमची माया शून्यामधल्या नवसृष्टीचा निर्मित तोही भरतो आहे रयते मधून नव्या
माणूस आता झळतो आहे वटवृक्षाच्या विशालतेचा मोहन भाला पडतो आहे रयते मधून नव्या युगाचा जीवनातला नीर जावा प्रबोधनाची पहाट भावी इथे लाभले पंखले उनी उंच भरारी नभात घावी प्रतिभाशाली बहुजनांचा वेदू गगनी चढतो आहे रयते मधून नव्या युगाचा माणूस आता झळतो. Thank you, Sasane sir. After this inauguration function, I request U.S. Shalke sir, Chairman of BCA Department, to welcome and introduce the theme of this webinar. Over to Shalke sir. ओ इकडे आहे माझं केलं ठीक आहे मॅडम सरांना तिकडे चल. हॅलो, आवाज येते? येतोय सर. First of all, I being chairman of BCA department and coordinator of today's function on the behalf of our college and principal, I, Mr. Umesh Shalke, welcome you all dignitaries on the virtual platform for a webinar on the theme Importance of Soft Skill in Today's Age and Time, organized by the Department of Computer Application, BCA, in collaboration with Internal Quality Assurance, IQAC, रयत शिक्षण संस्था, आर्ट सायन्स and Commerce College, Ramannagar Burli, Taluka Palus, District Changi. I heartily welcome the President of the function, our beloved Principal, Honorable Dr. L.D. Kadam Sahib, ASC College, Ramannagar Burli. I welcome the resource person, Ms. Shraddha Musale, renewed actor, founder, CEO, Future Tayari, and Mr. Deepak Tomar, Executive Director at Nomura Fintech Investment, and co-organizer Tejas Phase, Western Maharashtra Future Tayari. I also welcome all the participants, students and teachers for this webinar. Being the coordinator of this webinar, I would like to give the information about the Department of BCA. The Department of Computer Application, established in the year 2008, the department runs the 3-year undergraduate program in BCA in the jurisdiction of Shivaji University, Kolhapur. The department has all facilities and well-qualified, experienced staff having high teaching and research profiles. The department has signed the MOUs with the different industry, academia, and organizations. The department conducts various student-centric activities such as seminar, project, group discussion, industrial visit, participation of the student in the Avishkar research competitions, hands-on training, and various workshops and programs, etc. By conducting these activities, the department has well placement and progression rate of the students. So today we are going to organize the webinar on the theme Importance of Soft Skill in Today's Age and Time. We know that the soft skill plays an important role in the overall personality development.
the development of the students develop the nation. By keeping these things in mind, we are going to organize this webinar. For this webinar, we have two expert and knowledgeable persons. Mr. Deepak Tomar, Executive Director at Nomura Fintech Investment. He has completed his postgraduate diploma in management from Top Management Institute of India, IIM, Ahmedabad. After that, completed the executive program from world topmost management institute, Harvard Business School. He has 8 years of experience in the investment banking and 5 years in equity research. He runs Nomura Investment in the fintech startup in AEJ. Also, he implemented and run the Nomura Fintech Partnership Program, in which he has engaging the startup in the fintech area. His expertise in the evaluation of startup and technology suitable for wholesale banks. Today, he is going to engage the first interactive session on the topic, the details of resume building process and action to land an interview. The second resource person is Ms. Shraddha Musale, founder and CEO of Future Tayari. She is a strong believer in the efficiency of soft skill when it comes to finding careers and chasing professional growth, and this is her motivation behind starting the Future Tayari platform. She has 8 years of experience in the television ads, web series, and film. 6 years of experience as a fashion model for the Elite Modeling Agency. Today, she is to engage second interactive session on the topic, current industry demand for soft skill, why training of soft skill is important in the post-COVID world. At last, I again welcome all for this webinar. Thank you. Thank you. Jai Hind, Jai Karma. Thank you very much, sir. After introduction, I now invite our beloved principal, Dr. L.D. Kadam, sir, for presidential address. Over to principal, sir. Thank you. Good morning, one and all. Honorable speakers, my dear staff members and students, Raj Shikshan Samsthas, Arts, Science and Commerce College, Ramananda Nagar, Burli, is hosting today's webinar on importance of soft skills in today's age and time in collaboration with Future Tayari. I welcome you all on this occasion. I hope you all are safe and doing well. At the outset, I express my sincere tributes to the memories of great educationist and the founder of Raj Shikshan Samstha, Padma Bhushan, Dr. Karmveer Bhaurav Patil. Dr. Bhaurav Patil was a great visionary educationist who worked for the upliftment of masses and downtrodden people through education. Our college, Arts, Science and Commerce College, Ramanand Nagar, Burli, was established in 1968 by Raj Shikshan Samstha, Satara. The college is affiliated to Shivaji University, Kolhapur. The college runs UG and PG programs. Dear friends, we all know that whole world is struggling from the COVID-19. And due to this crisis, there are so many transformations, and it has created adverse effect on many sectors. It has created challenges on one side and opportunity on other side. In this context, getting job becomes very difficult and hard. To get job, technical skill is important, but in addition to this technical skill, soft skills are very important. Soft skills are personal attributes that influence how well you can work or interact with others. These skills makes it easier to form a relationship with people, create trust, dependability, and lead teams. This soft skill covers a wide range of skills such as communication,
teamwork, time management, empathy, problem solving, digital proficiency, creativity, confidence, self-awareness, leadership, listening and writing skill also. These soft skills enable you to engage in meaningful interaction with others, to build professional relationship, to increase productivity in your career, to achieve your dream job, to make you special or different from the other. Good communication and negotiation skill etiquettes can help you gain an edge over other skills. Technical skills are important, but not enough to bring out your best in a job. Soft skills are required to utilize technical expertise at the right time and place. Today's webinar will enlighten all the students about the importance of soft skill. I congratulate BCA department for organizing today's webinar on soft skill. I appreciate the team members and the experts for their hard work. I would like to conclude and express my best wishes to this webinar. Thank you very much. Jai Karmavir. Thank you very much, sir. I now request Mr. Tejas Fase, sir, Program Officer of Future Tayari from Western Maharashtra Future Tayari, to introduce our resource person, Ms. Shraddha Muse, renowned actor, founder, CEO, Future Tayari, and Mr. Deepak Tomar, investment banker at Nomura Fintech, IIM Ahmedabad alumnus. Overall to Tejas, sir. Okay. So, am I audible? मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes. Okay. So, first of all, good morning to all of you, and thank you for joining this webinar. So, without further any delay, I'll just introduce in quick way our today's guest. So, today's our first guest is the Mr. Deepak Tomar, sir. So, currently, he works as an executive director at Nomura Fintech Investments. So basically, he has total 13-year experience so far, and the experience is divided into the investment banking and the equity research. So in a quick way, I'll just introduce you what he works today and his past work. Okay. So currently वो actually मैं अभी इंग्लिश और हिंदी ये दोनों लैंग्वेज यूज करूंगा, क्योंकि बेसिकली इम्पोर्टेंट हमारा जो वेबिनार है वो हमने हिंदी में ऑर्गेनाइज किया है, इसलिए. So basically today currently he runs the Nomura investment in fintech startups actually, and before that he implemented and ran Nomura fintech partnership program in which he was engaging with startups in specific in fintech area. So basically उनका जो expertise area है वो evaluation of startups है and technology है जो specifically suitable for the wholesale banking. Okay, so this is all about his experience in a short way. Okay, so basically now I'm going to talk about his education. So he has completed his post-graduation diploma in IIM Ahmedabad, which is the topmost college of management college in India. So आप लोगों को पता ही है. और then he also completed his executive program from the world topmost management institute, which is Harvard Business Schools. ओके, वेबिनार होने के बाद आप ये दोनों इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाइए और उसका इंपॉर्टेंस देखिए कि हाउ दीज इंस्टीट्यूट आर पॉपुलर इन द वर्ल्ड एक्चुअली. सो दिस इज एक्चुअली द शॉर्ट इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन अबाउट आवर टू फर्स्ट गेस्ट. आप उनके लिंक्डइन के प्रोफाइल पे जाइए, आप उनको उनकी एक्चुअली डिटेल्स इंफॉर्मेशन वहां पे मिल सकती है. The second our guest is the Miss Shraddha Muse, who is the founder and CEO of Future Tayari. So she has also the 14-year experience in television ads, web series, and films. And 6 years, like sir has introduced, she is also has the 6 years of experience as a fashion model for Elite Modeling Agency. So basically, in short way,
फ्यूचर तैयारी एस्टेब्लिश करने का उनका एक्चुअली मोटिव बता देता हूँ. सो शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन द effectiveness or efficacy of the soft skill when it comes to finding careers and chasing professional growth. So this is her motivation behind establishing the future tayari. So welcome both of you, and I'll request you to share your thoughts with today's audience. So that's all from me. Welcome to all of you. Okay, thank you. Thank you, Tejas. Thank you for the introduction. Kadam sir, thank you for the warm welcome. और तुम्ही एवढं डिटेल मध्ये सॉफ्ट स्किल्स बद्दल सगळ्यांना सांगितलं. That is tremendous. So we do not have to explain what exactly soft skills are and the importance of soft skills. देशमुख जी, आपने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. And we are very happy to receive this warm welcome from all of you. और हम लोग थोड़ा, मैं मराठी में भी बात कर सकती हूँ, दीपक को मराठी बात करनी नहीं आती है, इसलिए we will stick to Hindi, थोड़ा मराठी and English, I'm sure. Oh yeah, Marathi, yes, yeah. So so we're glad that everyone is here. So what we want is हम ये पूरा webinar को थोड़ा interactive बनाएंगे. And you know, of course, we are there. हम फ्यूचर तैयारी के बारे में बताएंगे, हम क्या कर रहे हैं. But I want, you know, the students also to speak up. जो भी आपके questions हैं, आप you know, after every interval we'll take a break. और आपका कुछ है तो just unmute yourself and ask questions, because this, it's not just a one-way thing. We would like to know what you think. What are the issues? What are the real problems that you face, right? Deepak, you want to add a few things? Hey, thank you, Shraddha, and you know. Very interesting kind of introduction by Kadam sir and BCA principal sir and Tejas and everyone. Really appreciate it. And thanks for this opportunity. You know, we really want to connect with India, and India is sitting in Satara. India is sitting in, you know, similar cities. India is not only Bombay. India is, there's a lot of Indias, you know, residing in these places, and all of them, all of you have needs, and we have created this program or the start of Future Tayari to really look after the needs that India has just outside Delhi, Bombay, etc. as well. And thanks for the detailed introduction. I think without you know, much you know, delay, we should just get on with our you know. Deepak, before you start the presentation, let me give them 2 minutes introduction, like future तैयारी क्यों हमने शुरू किया है, और the idea and inspiration behind this. So दीपक और मैं, हम दोनों की अपनी जर्नी रही है. हम दोनों भी kind of छोटे शहर से आए हैं. So जब मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी, so from relatively small town, जब मैं बॉम्बे आई थी और मैंने मिस इंडिया pageant में I was a finalist. So I was surrounded by people जो लोग you know, दिल्ली बॉम्बे से आए थे, जिनका better exposure था, जो लोग बहुत अच्छा बात करते थे, वो लोग already models थे. So कैसे what does a person go through जब वो एक बड़े शहर में जाते हैं और हमसे और ज्यादा स्मार्ट लोगों से मिलते हैं. So what we realize is कुछ चीजें, कुछ qualities की जरूरत होती है. अगर वो है like your confidence, आपका communication, सेल्फ एस्टीम, ये कुछ चीजें जब होती हैं तब आपको कहीं भी खड़ा कर दिया जाए, यू आर फाइन विद इट. इट डजंट मैटर वेयर यू कम फ्रॉम. बट ये छोटी चीज है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में हम टेक्निकल नॉलेज और एकेडमिक्स तो हर कोई सीखता है, पर बाकी जो स्किल्स की जरूरत पड़ती है वो लाइफ में सबसे ज्यादा यूज आती है, और वो लाइफ में हमको बहुत जल्दी आगे ले जाती है. ये हम दोनों का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है. सिमिलर विद दीपक, राइट? राइट, एब्सोल्युटली. आई ग्रू अप इन गोरखपुर, यूपी में है, छोटा शहर है, और उसके बाद नॉर्थ बिहार में समस्तीपुर करके बहुत छोटा शहर है वहाँ पर, and a few other places. But the only good thing is that I got the opportunity to go to the best institutions in India. That was my, you know, good luck and my opportunity of, you know, because we have all the wherewithal, the resources and the understanding. We really want to share everything with students in India so that they move ahead in life. And that's our interest. So I think with that we should, you know, we should begin. And पहले श्रद्धा बताएंगी, पहले श्रद्धा अपना बात करेंगी, and उसके बाद I will take you through
do a few things. Okay, so let's just. So Deepak is going to speak about the whole, you know, how do you prepare for the interview? What kind of resumes you need to make? लेकिन अगर because right now he's asked me to speak, तो मैंने हमेशा सोच रही थी कि आप लोगों से बात करते वक्त, you know, what should I speak about? क्या मैं अपने courses के बारे में बताऊं जो future तैयारी के courses हैं? But I realize you can see the screen, everyone. Yes, clearly. Great, you can see the life experiences. I realize आप लोग futurethyary.com में जाके हमारे courses तो access कर ही सकते हैं. So I wanted to take you all through some of the experiences that I've learned, because जब मैं colleges में जाती थी और मिलती थी तो काफी students को देख के मुझे you know, I could see myself in them कि मैं भी exactly वैसी ही थी जब you know, few years ago. So great. So a few experiences let me share you know, for 15-20 minutes, and I'll ask Deepak to take over. So great. So first of all, what I've learned overall over the years is, you know, ये सब मैं college बच्चों के लिए कह रही हूँ, all the students, you know, we underestimate ourselves and overestimate others. हम कितनी बार, can I see myself? Can I see this one? हमको कितनी बार ऐसा लगता है कि we are not good enough, हम ये चीज नहीं कर पाएंगे, हम अपने आप पे उतना भरोसा नहीं करते और हमें लगता है कि बाकी लोग हमसे बेटर हैं और वो कर पाएंगे. But you know what, so line is self-explanatory. We, you know, understand what you are and don't underestimate yourself. You can do really big things. और कितनी बार ऐसा होता है कि हम blame games खेलते रहते हैं कि मैं यहाँ पे रहती हूँ, यहाँ पे एक्सपोजर नहीं है, यहाँ पे ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, उन्होंने मेरे साथ ये किया है, वगैरह वगैरह. बट व्हाट वी रियलाइज इज आज का जमाना बहुत अलग है. आज का जमाना में हर चीज आपके घर पे, आपके फोन के, आपके लैपटॉप पे है. सो दिस इज अ डिफरेंट टाइम. यू नीड नॉट प्ले एनी ब्लेम गेम. हम जो हैं, जहां हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से हैं और किसी को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते. Am I right? You can unmute yourself and you can speak, okay? Very important. Deepak, you want to take over? Like how, you know, कैसे हमें बचपन से सिखाया गया, अरे पैसों के पीछे सिर्फ मत भागो, money is not everything. You're right, but it's very important to have a positive attitude towards money. So एक कहानी बताता हूँ, आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा. You know, भाई हम दिवाली में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं. लक्ष्मी is the goddess of abundance. ठीक है, लक्ष्मी जी को मनी से एसोसिएट किया जाता है, तो हम पूजा लक्ष्मी जी की करते हैं. लेकिन जब भी किसी ऐसे इंसान की बात आती है जिसका बहुत पैसा, हम उसको एक नेगेटिव एटीट्यूड से देखते हैं कि इसने चोरी की होगी या ऐसा किया होगा. हम ऐसे क्यों नहीं मानते कि उसने शायद मेहनत करके पैसा बनाया. और काफी सारे लोग ऐसे. आप ये समझिए कि देश, हिंदुस्तान देश चल रहा है क्योंकि बहुत सारे सही लोग हैं इसको चलाने वाले, वरना तो टेढ़े मेढ़े रास्ते में चला जाएगा. There are a lot of people who are doing the right things, which is why the country is moving ahead. And remember, the greater the number of rich people in a country, the faster the country will grow. Okay, there's a correlation. आप किसी भी country को देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा billionaires US में हैं. US is the biggest, you know, the most powerful country. The second largest number of rich, you know, billionaires are in China. China is the second biggest power, economic power in all possible ways, right? I think so powerful that आजकल आपको सबको कोरोना भी दे हुआ. तो कहने का मतलब ये है कि you know, हमारा जो country, अगर पूरी country का attitude towards money अगर वो change हो, then the country will move ahead, because you will do things. We will do those things which will make us wealthy. Wealth का मतलब ये नहीं होता कि आप चोरी करें. Wealth का मतलब ये नहीं होता आप किसी दूसरे का हिस्सा छीन लें. No. Wealth का मतलब होता है having the right attitude towards wealth and working towards it, making life beautiful with that. So that's what the whole thing is about, you know, money. And we want to tell the young people to have big dreams. Think about that. You life में abundance है, मौजूद है. Everything is available in abundance. कहते हैं ना कि समंदर में पानी तो बहुत है, पर आप एक छोटा सा लोटा लेके खड़े हो तो आपको उतना ही पानी मिलेगा. So everything is in abundance. Let's try to create wealth and then contribute to the society. हमारे पास अगर कुछ होगा ही नहीं तो हम देंगे क्या? So that's what we want to tell to young people. Be powerful and think big. Yeah.
then yes, this is the biggest mistake जो हम बहुत सारे लोगों से होती है, especially the youngsters. क्या होते हैं, हमारे सपने होते हैं, हमारे ड्रीम होते हैं, हमारे गोल्स होते हैं. जैसे अभी न्यू ईयर आ रहा है, हम सबके पास कोई ना कोई शायद रेजोल्यूशन होंगे, मैं ये नेक्स्ट ईयर में करूंगा, ये करूंगा. सो कभी कभी क्या होता है, हम कभी कभी इतनी सारी चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता है. एंड देन वी रियलाइज यार मेरे को करना तो है, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ. मेरी इच्छा तो है. तो क्या होता है, एक जब हम लिस्ट बनाते हैं, मन में आप लिख लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इट डाउन. सो उसमें सारी चीजें पॉसिबल नहीं है. सो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. और जब आप प्रायोरिटी किसी एक चीज को देते हो, एक या दो चीज को, तो बाकी कुछ चीजों को हटाना पड़ेगा अपनी लाइफ से. सो व्हेन वी से प्रायोरिटाइजेशन, इसका मतलब है कुछ चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस देके कुछ भी करके वो चीजें कंप्लीट करना, और कुछ चीजों को लाइफ से हटाना. लाइक राइट नाउ, सपोज इफ आई हैव अ प्रायोरिटी, ओके, आई एम टेकिंग दिस वेबिनार, आई हैव सम मीटिंग्स, देन आई गो एंड मीट फ्रेंड्स, न्यू ईयर का ये करना है, मेरे को कुछ करना है. अगर 10 चीजें मैंने बनाई है, तो अगर सब कुछ करने जाऊंगी तो शायद मेरा कुछ भी नहीं होगा. राइट? सो आई नीड टू चूज कि मैं ये 3-4 चीजें करूंगी, और कुछ चीजों को हटा दो कि मैं नहीं मिलूंगी फ्रेंड से, मैं ये नहीं करूंगी. सो वो ना बोलना और कुछ चीजें, नॉन इम्पॉर्टेंट चीजों को हटाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो टेक केयर ऑफ दैट. अगेन वी सेड वी ड्रीम स्मॉल, और कुछ लोग तो सपने देखते ही नहीं है. लाइफ, वी ऑल नो द सीक्रेट थियरी, राइट? कि आप जो सोचोगे वो आपको मिलेगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही चीजें सोचो, और सिर्फ कहते हैं ना, इट्स नॉट जस्ट यू सिर्फ सोचो और मिलेगा. आप वो सोचते रहो एंड जस्ट बी इन दैट फ्रीक्वेंसी कि मुझे, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, सो जस्ट थिंक दैट मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, एंड इन दैट फ्रीक्वेंसी. सो धीरे धीरे एंड बिलीव दैट यू आर ऑलरेडी गेटिंग गुड मार्क्स. So you are in that, the gravitational field. So that is what is dreaming is. और कभी कभी अफसोस ये होता है कि यंगस्टर्स भी जब पेसिमिस्टिक होते हैं ना, यार ये देश का कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, हम क्या. हम लोग अगर पैदा हुए ना, तो हम ऐसे ही पैदा नहीं हुए कि हम वी आर बॉर्न, हम बड़े हो जाएंगे, चले जाएंगे. नो, everybody of us have a purpose, right? So उसको ढूंढते हैं, वो सपने देखते हैं, and let's live a purposeful life. That's what we mean. Very important. हम लोग जब कॉलेज में थे तब हम बोलते थे कि the dude boy or a hot babe from college may not necessarily do the best in life. Look out for the black sheep. हर कॉलेज में ऐसा होता है कि कुछ लोग ज्यादा स्मार्ट होते हैं, उनको बहुत ज्यादा भाव मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता. आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेट टू इट. हमारे साथ भी ऐसा हुआ है. आई वॉज टोटली अ ब्लैक शीप. मैं अगर अपनी एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे स्कूल में कोई भाव नहीं देता था. मतलब द वे आई यूज्ड टू लुक, अगर मैं बिफोर वाला आपको पिक्चर दिखाऊंगी तो जैसे ऑल द बॉयज, जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो बहुत सुंदर दिखती थी, तो सारे बॉयज उसको प्रपोज करते थे. नोबडी यूज्ड टू आस्क मी अबाउट दैट. लेकिन जो कॉलेज में होता है या स्कूल में होता है, वो जरूरी नहीं लाइफ में बाद में भी हो. सो आप समझ लो, आप कहीं पे भी हो अभी कॉलेज में, either you're a hot babe or a dude boy या black sheep हो, things change over the years. Work on yourself. देखिए, इसमें सिंपल सी बात ये है कि when you are in college, you are living on your father's money. Remember, that's a reality, right? उसमें कोई बड़ी बाइक लेकर के आ रहा है, तो you don't get too influenced by that. और उससे अपना कॉन्फिडेंस कम करने की जरूरत नहीं है, because life changes. Life changes when you go out from college and you start working, or you start a business, do something. Life changes after that. और कॉलेज के 5 साल बाद things change dramatically. Okay, things change dramatically. 5, 10, 15, yeah. So don't compare yourself with anybody who has more resources while in the college. The destiny is in your hands. So if you can take control of your destiny and move ahead in life, that's all you need to do. अपने आप में इन्वेस्ट करना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है. Remember that for life. Okay. So network of people is the most important asset that you will have. Expand it. What we mean is, हमको कभी कभी लगता है कि हम खुद ही सब कर लेंगे अपना, मुझे किसी की जरूरत नहीं है लाइफ में, मैं अपना कर लूंगा.
वेरी गुड, आपकी मेहनत से और आपके नॉलेज से आप चीजें कर सकते हो, लेकिन लाइफ में ना हम कभी भी अकेले आगे नहीं बढ़ते। वी नीड पीपल जिनकी वजह से हम आगे बढ़ेंगे। अगर ऑफिस में भी आप कोई काम कर रहे हैं, if you're an employee and you think कि मैं सिर्फ अपने काम से करूंगा, नो, अल्टीमेटली जो आपको प्रमोशंस देंगे वो आपके बॉसेस होंगे, राइट, योर हायर अथॉरिटीज होंगे। सो यू नीड टू हैव अ राइट नेटवर्क। और हम जब नेटवर्क की बात करते हैं, सो नेटवर्क मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कॉन्फ्रेंस रूम में लोग एक दूसरे को विजिटिंग कार्ड बांट रहे हैं। नो, इट इज अबाउट हैविंग रियल रिलेशनशिप्स। सो व्हाट वी रियलाइज इज, ये लेसन हमने भी सीखा, अगर कॉलेज में जब है, सो कॉलेज में हर किसी के सिर्फ अपने अपने ग्रुप्स होते हैं कि मेरे ये 3-4 फ्रेंड्स है, ये मेरा ग्रुप है, वो तो रखो ही, पर जितना हो सके ज्यादा लोगों से नेटवर्क करो, रिलेशनशिप्स बनाए रखो, क्योंकि आगे जाके इंडस्ट्री में यही लोग आपके कंटेम्प्रेरीज होंगे। 10 साल के बाद जब आपको जॉब शिफ्ट करनी है और कोई आपका एक कॉलेज का फ्रेंड उस कंपनी में है, यू कैन गिव रेफरेंस कि बॉस आई वांट टू जॉइन योर कंपनी, आर देयर सम ओपनिंग्स है, या किसको मिलना है। और ये ऐसे बहुत होता है, मैंने इनके इंडस्ट्री में देखा है। सब बोले अच्छा मैं अपने एचआर से बात करता हूँ, आप अपना रेज्यूमे भेजो। सो बेसिकली ये जो रियल रिलेशनशिप्स होते हैं, सो वो लाइफ में फायदा करते हैं। सो मेक यूज ऑफ इट। सोशल मीडिया, आप में से कौन कौन इंस्टाग्राम पे है? Just say yes. You can unmute yourself. I want to know how many people are on your Instagram and Facebook. How many people are on Instagram? Everybody. I'm sure. TikTok is not. अभी तो TikTok चला गया. I can't hear you. Yes, ma'am. I'm on Instagram. You're on Instagram. आप लोग में से बहुत सारे लोग Instagram में होंगे, right? सब होंगे सर. Right. So what we mean to say is कुछ लोग होते हैं ना, स्पेशली हमारा जनरेशन पूरा दिन फोन पे रहता है, सिर्फ फोन पे स्क्रॉल करते ही रहते। हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं आप लोग पूरा दिन करते क्या फोन पे। खैर आजकल तो पेरेंट्स भी पूरा दिन व्हाट्सएप पे रहते हैं, बट व्हाट वी मीन टू से इज बहुत ज्यादा टाइम किसी को सोशल मीडिया पे बिताना इज नॉट अ ग्रेट आइडिया, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश योर ओन ब्रांड। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑन सोशल मीडिया। आपका इंस्टाग्राम पे एक हैंडल होना चाहिए, आपको पोस्ट करना चाहिए, और एक अपना एक ब्रांड बनाओ कि ओके XYZ है। सपोज मानसी करके एक लड़की है, मानसी लाइक्स what does she like? Mansi likes maybe she's very interested in gardens or flowers. So तो you know जितना हो सके अपना इंटरेस्ट अपने सोशल मीडिया पे दिखाओ ताकि आपका एक ब्रांड बने। कमिंग टाइम्स में दिस डे एंड एज एवरीबडी इज अ ब्रांड। जो हम कपड़े खरीदते, जूते पहनते, नाइकी, एडिडास, पेप्सी, दे ऑल ब्रांड्स। ऑल ऑफ अस आर अ ब्रांड। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सोशल मीडिया पे श्रद्धा बोल रही है कि आप टाइम बिताते हैं, तो you can spend time in 2 ways. One is you can spend time consuming everything. देख रहे हैं ऊपर, ये कर रहे हैं, दूसरों का जो दूसरों ने लिखा है, दूसरों ने दिखाया है, वो कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरा है you can spend time on social media by producing, right? Shraddha is saying you have certain interest, you produce, right? So rather than consuming from others, produce. There's a lot of motivational things on social media. You consume those things. So that's what the whole idea is. हमारे कर्म डिसाइड करेंगे कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद where we are in life. So remember, जो आप कर्म कर रहे हैं every moment, that is going to define the every next moment. आज मैं क्या कर रहा हूँ is going to define my future. कल मैं क्या कर रहा हूँ is going to define my future. So you know the ball is in your court. And social media when we talk about, you know, हम सबको अच्छा लगता है बॉलीवुड एक्टर्स के फोटोज देखना, आजकल इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं ये वो, but remember social media is not a real life. लोग अपनी लाइफ, अगर अब मेरा आप सोशल मीडिया देखोगे और मेरे रियल लाइफ देखोगे, मेरा इंस्टाग्राम और रियल लाइफ, उन दोनों में फर्क है। सो यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, राइट? ये मत सोचो कि अरे मेरी लाइफ तो कितनी झंड है और बाकी लोगों की कितनी अच्छी है। इट्स नॉट दैट, ठीक है? सो व्हाट वी मीन टू से इज बी स्मार्ट टू डिस्टिंग्विश द डिफरेंस, और अपना पूरा टाइम और अपना यूथ सोशल मीडिया पे वेस्ट मत करना। अगर टाइम देना ही है तो अपना ब्रांड क्रिएट करो सोशल मीडिया पे। बी ऑन ट्विटर, बी ऑन लिंक्डइन, be on Instagram and have your own brand. Very important. ऐसा होता है, देखो हम इंडिया में है, हम सबके साथ ऐसा हुआ है। हमारे पेरेंट्स, स्पेशली लड़कियों को तो मैं बोलना ही चाहती हूँ, यू नो, शादी 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 करते हैं। शादी तो सबकी होगी, शादी
और पेरेंट्स की गलती नहीं है, बट व्हाट आई मीन टू से सिर्फ शादी को अपनी प्रायोरिटाइज मत रखो। हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर तुमने लाइफ में अच्छा किया तो आपको अच्छा पार्टनर मिलेगा। जो जैसा होता है ना उसको उस लेवल का ही पार्टनर मिलता है। सो make sure that you do well in life, especially for girls. I'm telling you, it's very important to have economic independence. You have to make sure कि आप जॉब करें, आप अपना बिजनेस करें, आप कुछ भी करें लेकिन पैसा कमाएं। सिर्फ ये मत सोचो कि हाँ मुझे तो शादी करनी है फिर हस्बैंड पैसा कमाएंगे ना। नो, आई एम टेलिंग यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हस्बैंड कितना भी पैसा कमाए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ एस्टीम टू मेक मनी। और किसी भी लेडी से पूछ लो, आस्क योर प्रोफेसर्स, विमेन प्रोफेसर्स, इट इज सो नाइस जब आप घर से बाहर काम करने जाते हो, यू हैव योर ओन वर्ल्ड, यू हैव योर आइडेंटिटी, जो सिर्फ घर पे बैठ के नहीं बनती है, राइट? सो लॉन्ग रन में इट्स इंपॉर्टेंट टू डू वेल इन लाइफ, सो थिंक अबाउट दैट। All for college students, breakups happen. Destiny has a plan, someone better waiting for you. हम लोगों ने भी बहुत टाइम वेस्ट किया है। शादी के पहले ब्रेकअप्स होते हैं। दीपक ने तो सालों वेस्ट किए। दीपक ने तो किसी को साथ प्यार हो गया, ब्रेकअप हो गया तो रोना, ये वो, रोना आएगा, दुख होगा, सब कुछ होगा, सबके साथ होता है। What we mean to say is बहुत टाइम वक्त वेस्ट करना। और किसी ने एक्चुअली कहा है ना, यू नो, बस ट्रेन उसके पीछे एक जाती है, थोड़ा रुक जाओ, दूसरी आ जाएगी। आज अगर हम पास देखते हैं तो लगता है, क्योंकि तब तो हमको लगता है सब, यू नो, ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स दे कैन रिलेट टू इट, तब लगता है कि ओ लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, जीने का कोई मतलब ही नहीं है। दिस इज ऑल बुलशिट। टाइम दो, सब कुछ सही हो जाएगा। जो लाइफ में होना है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है पता है लाइफ में हमारे लिए? हम खुद। एंड दिस इज नॉट बीइंग सेल्फिश, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लव योर सेल्फ। हमको अपनी खुद की कंपनी सबसे अच्छी लगनी चाहिए। यू हैव टू टेल एवरी मॉर्निंग दैट आई लव यू योर सेल्फ, ठीक है? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हाई सेल्फ एस्टीम। डूइंग द सेम थिंग एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट नहीं होगा। देयर इज अ सेइंग, इफ यू कीप डूइंग द सेम थिंग you will get the same results. What is the saying? Yeah, that's what, and this is why Einstein ये बात जो कही है, doing the same things and expecting different results is the definition of insanity. Yeah. That it was said by Einstein, Albert Einstein. And आप सोचिए, मतलब साल बदल रहा है, 2020 2021, अगर हम सेम चीजें करते रहे, हमारा लाइफ सोच सेम है, कर्म सेम है, तो लाइफ कैसे अलग होगी? So if you want to do differently, if you want to move ahead in life, थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा. Only when you change, things change. The outcome changes. So it's very very important to make a note of this. You know, हम सबको है ना, हर इंसान को है ना अपने कंफर्ट जोन में रहने की आदत होती है कि मैं तो सुबह ऐसा ही करती हूँ, मेरे यही लोग हैं, मेरे यही फ्रेंड्स हैं, मैं यही टाइम पे उठती हूँ, मैं यही खाना खाती हूँ। You know, एक कंफर्ट जोन, it is very very important to move out of your comfort zone and do different things. वो चीजें करो जो लाइफ में कभी नहीं की है। थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, ऐसे कभी कभी नए लोगों से मिलते तो लगता है मैं क्यों नए लोगों से मिल रही हूँ, मेरे तो वही सेट ऑफ फ्री जो लोग हैं। पर अगर वही चीजें करते गए तो आप वही रहोगे। अगर आपको कुछ भी आगे जाना है, कुछ अलग चाहिए, तो कुछ अलग करना पड़ेगा। That's the only thing. There is another reality, you need to know this. हम जैसे होते हैं, we are an average of the 5 closest people we have. Remember this. मैं अगर आप में से कोई भी हो, आपके 5 लोगों को क्लोजली मैं देख लूं कि ये ऐसे हैं, आई विल अंडरस्टैंड आप लाइफ में कितना आगे जाएंगे, आप लाइफ में क्या करेंगे, आपके बिहेवियर्स कैसे, सब समझ में आ जाएगा। It's very very important. So if you want to really move ahead in life, you need to understand, you need to really have the right kind of 5 to 6 people जो आपके क्लोज हों, जो आपको इन्फ्लुएंस करें। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको मैं सलमान खान से मौका मिलने के लिए एक दिन, और एक दिन वर्सेस बोले बिल गेट्स के साथ मौका मिले उसके साथ एंगेज करने के लिए, बात करने के लिए, आप किसको चुनेंगे? तो दोनों में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। तो ये सिर्फ एक सवाल है, कभी सोचिएगा इसके बारे में, बिकॉज द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस बिल गेट्स कैन हैव ऑन यू सिर्फ एक दिन में, उसका हमें अंदाजा भी नहीं है। सलमान खान के साथ आप शायद ड्राइविंग करना सीख लेंगे, बट बिल गेट्स के साथ कुछ और सीख लेंगे। You have a problem with Salman Khan, I'm sure. So
सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहने का मतलब है अपना सर्कल अच्छा बनाए रखें, क्योंकि सर्कल से ना बहुत इन्फ्लुएंस होता है, हमको समझ में नहीं आता लेकिन सबकॉन्शियसली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है. सो हैव अ गुड सर्कल अराउंड यू. या दीपक, यू वांट टू एक्सप्लेन अबाउट कंपाउंडिंग? सो ये कंपाउंडिंग जो है ना, इसको वर्ल्ड का 8वां वंडर बोलते हैं. अब एक कहानी समझाता हूँ. एक राजा था, तो उसके दरबार में एक बार एक आप समझ लो तेनालीरामा या बीरबल जैसा एक इंसान है, साधु जैसा था, बस चमत्कारी था एकदम. तो उससे कुछ बात हुई और राजा और उसकी कोई शर्त लगी, तो उसने बोला कि आप मुझे, वो ये साधु बंदा जीत गया, तो उसने बोला कि आप मुझे, जो होता है चेस बोर्ड, ओके, तो चेस बोर्ड में 64 स्क्वायर्स होते हैं, राइट. उसने बोला कि एक स्क्वायर पे, पहले स्क्वायर पे आप एक चावल का दाना रख के दे दो मेरे को, दूसरे वाले पे उसका डबल कर देना, तीसरे वाले पे उसका डबल, चौथे वाले पे उसका डबल. तो कैन यू इमेजिन कि कितना 64 स्क्वायर तक पहुंचते पहुंचते वो कितनी बड़ी चीज हो गई. बेसिकली राजा हैड टू सेल एवरीथिंग. वो भिखारी बन गया बिकॉज उसमें कुछ बचा नहीं. इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग. एक आप लोग जो मैथ्स पढ़ते होंगे उनको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट. ये कंपाउंडिंग होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिखाई देती है. ओके, सो तो पहले खाने में पहला, दूसरे खाने में 2, तीसरे खाने में 4, चौथे खाने में 8. अब ये जो डबल होता जा रहा है, आपको 30, 40, 50 खानों तक कुछ ऐसा लगेगा नहीं इतनी बड़ी चीज है, लेकिन 64 तक पहुंचते पहुंचते मतलब it will become such a big number that you can't even imagine. So what you need to do is 2 to the power 63. When you do 2 to the power 63, it will become an इतना बड़ा नंबर की सोच भी नहीं सकते. That's compounding. एक और चीज बताता हूँ. एक लोटस, एक पॉन्ड है, तालाब है जिसमें लोटस उगते हैं, ठीक है. तो क्या होता है, लोटस हर अगले दिन ना डबल हो जाते हैं. मान लो आज थे 2 तो कल 4 हो जाएंगे. ओके, तो आप सबके लिए एक सवाल है कि महीने के तीसरे दिन पर वो लोटस का पॉन्ड भर जाता है. 30th डे, 30वां महीना है, 30वां दिन है महीने का, लास्ट डे पे भर जाता है. तो आधा कब था, ये सोच के बताइए. Unmute yourself and give us the answer. कोई बताएगा? 30th डे पे पॉन्ड पूरा भर गया, तो आधा भरा हुआ कब था? People, are you there? क्या आप लोग सो गए? बोर हो गए? कोई है? You got to answer. Unmute and answer. So मैं बताता हूँ. आप कई लोगों को लगेगा 15th डे पे आधा होगा, नहीं, क्योंकि लोटस हर अगले दिन डबल हो जाते हैं. तो ये 29th डे पे आधा था, 29th डे पे आधा था, इसलिए 30th डे पे आधा into 2 पूरा भर गया, 1 हो गया, करेक्ट. तो कहने का मतलब ये है कि कंपाउंडिंग की जो चीज होती है ना, वो काफी टाइम तक हमें लगता है कि यार अभी कुछ हो नहीं रहा है, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका कुछ फल मिल नहीं रहा है, लेकिन वो आप कंपाउंडिंग के प्रोसेस में है. आप 29th डे तक आपको लगता रहेगा यार भरा तो नहीं अभी तक मेरा, जो भी कुछ लाइफ में हो नहीं रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है. प्रोसेस कंपाउंडिंग को होने देना चाहिए. मतलब जर्नी ऐसे जाती है, पहले इसलिए फिर एकदम से उठती है, ये कहने का मतलब. कॉल्ड कंपाउंडिंग. आप लोग कोई भी मैथ्स जो पढ़ते हो ना, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को प्लॉट करके देखना. तो जब प्लॉट करोगे तो पता चलेगा कर्व ऐसा जाता है, ऐसे फिर ऊपर उठता है. एक्सपोनेंशियल कर्व जो होता है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं, ये वो वाली चीज है. लाइफ इज ऑल अबाउट दैट. आई एम टेलिंग यू, आपको मेहनत करनी है, कुछ भी करना है. शायद लगे कि पहले 3, 4 साल, 5 साल या कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन बॉस जो पहले 4, 5 साल जो काम किया होता है ना, वो ग्राउंड वर्क होता है, और उसके बेसिस पे फिर आगे ग्रोथ मिलती है. एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, और हम सभी लोगों को चाइनीज बैम्बू बनना चाहिए. क्या बनना चाहिए? चाइनीज बैम्बू. उसकी स्टोरी ऐसी है, चाइनीज बैम्बू को जब जमीन में बोते हैं ना, तो 4 से 5 साल तक वो उगता नहीं है. लोगों को लगेगा यार ये तो उगने वाला नहीं है, कुछ हो गया, लेकिन चाइनीज जो फार्मर्स होते हैं उसको पानी डालते रहते हैं. 6ठे साल में वो धीरे से निकलता है जमीन से, और जब वो निकलता है पहली बार जमीन से बाहर, in 90 days it grows like 300 feet. आप समझ रहे हो? 90 days में वो 300 फीट ग्रो हो जाता है चाइनीज बैम्बू. पहले 5 साल कुछ नहीं निकला जमीन से, और 6ठे साल में जब निकला
तो 90 days में 3 months it goes 300 feet. That's amazing, right? That's the whole thing of compounding. तो ये जो होता है ना, ये ग्राउंड वर्क होता है. ग्राउंड वर्क से कभी डरने का नहीं, ग्राउंड वर्क करने का, मेहनत करने की, फोकस करने का, सही लोगों के पास रहने का, and then the growth will come. Okay, so that understand, ये सारी चीज जो हम बता रहे हैं ना, आपकी मर्जी है, you know, it is our duty to share all these things with you. वो मर्जी आपकी है whether you will take these things or not. Okay, so you know that's the 8th wonder of the world. और 8th wonder of the world ये सबके कंट्रोल में, सबकी पहुंच में है. It's just that कौन डिसाइड करता है कि यार ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड को मैं यूज करूंगा अपनी ग्रोथ के लिए. ओके ओके, सो व्हाटएवर वी हैव सेड, जितना तक हम सीखे हैं लाइफ में और हमने देखा और एक्सपीरियंस किया है, सो व्हाट वी रियलाइज इज ये जो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट चाहिए ना एक अच्छी लाइफ, एक सक्सेसफुल लाइफ होने के लिए, वो है सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम मतलब खुद की नजरों में अपनी क्या वैल्यू है, अपनी नजरों में. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर वो वैल्यू अच्छी होगी तो आप अच्छा करोगे. अपने आप को वैल्यू करना सीखिए. There is a, okay, for, you know, should I declare, should I tell them no about the free course? Okay, future तैयारी. So let me tell you what is future तैयारी. वो मैं बाद में डेमो दूंगा, बताऊंगा. ठीक है. So right now we after the webinar today we will give you a free course. future तैयारी के ना अलग अलग courses हैं. So उसमें से एक course है how to develop your self esteem and self confidence. वो course हम आपको being special, we are specially talking to you all, तो वो कोर्स हम आपको फ्री देने वाले हैं. उसके बारे में हम थोड़ा ब्रीफली बताते हैं. ठीक है. तो फ्यूचर तैयारी के बारे में बेसिकली दे हैव कोर्सेज और प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं फ्यूचर तैयारी के. आप अपनी मर्जी से जब चाहो उसे देख सकते हो, रोक सकते हो, जैसे हॉटस्टार या नेटफ्लिक्स देखते हो, जब भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कितना भी देखना है देखो. नेक्स्ट टाइम आप देखोगे, यू कैन स्टार्ट योर कोर्स फ्रॉम दैट. दैट्स व्हाट फ्यूचर तैयारी कोर्सेज इज. सो इन लाइफ आज हम जो हैं जैसे भी हैं 6 लाइफ स्ट्रक्चर्स की वजह से हैं. हर लाइफ स्ट्रक्चर्स. तो क्या क्या लाइफ स्ट्रक्चर्स हैं? पहला है अपब्रिंगिंग. अपब्रिंगिंग मतलब हम कहाँ बड़े हुए, हम किस घर में पैदा हुए, हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, हमारे सराउंडिंग कैसे हैं. राइट. कल को मैं लंदन में पैदा होती, लंदन में पेरेंट्स होते, आसपास के लोग होते, आई वुड हैव बीन अ डिफरेंट पर्सन. कल मैं अहमदाबाद में हुई तो यू नो सो अंडरस्टैंड. ठीक है. पेरेंट्स का एक्सपोजर कितना है, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं. दैट्स कॉल्ड अपब्रिंगिंग. सेकंड इज योर लैंग्वेज. अगर तो आप देखना अपनी लाइफ में कि जो लोग बहुत अच्छी बात कर सकते हैं, जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है या मराठी, हिंदी, जो भी बहुत अच्छी बात कर सकते हैं, उनका कॉन्फिडेंस एक अलग होता है. सो लैंग्वेज प्लेज अ वेरी बिग रोल इन डिफाइनिंग योर कॉन्फिडेंस लेवल. थर्ड इज अपीयरेंस. वेरी क्रूशियल फॉर ऑल द यंगस्टर्स. ये भी देखना कि जो लोग दिखने में बड़े अच्छे होते हैं ना, तो उनको वो कॉन्फिडेंस होता है कि आई एम वेरी गुड लुकिंग. ओ लॉट ऑफ बॉयज आर मुझ पे लाइन मार रहे हैं, आई एम इन द डिमांड, ये वो. सो एंड सेम विद बॉयज, गर्ल्स, एवरीवन, ऑल अंकल आंटी. सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ स्ट्रक्चर. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कौन से लाइफ स्ट्रक्चर से हिला हुआ है. चौथा है एक्सपोजर एंड नॉलेज. कुछ लोग देखना, उन लोग के पास बहुत नॉलेज होता है, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, वो लोग बात कर सकते हैं उस सब्जेक्ट पे. सो दे कैन ग्रुप में होते हैं, कहीं भी उनको खड़ा रख दो, वो अच्छे से बात कर पाते हैं. सो उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है अपने नॉलेज एंड एक्सपोजर से. फिर होता है फाइनेंसेस. जो लोग बहुत रिच होते हैं, जो रिच घर में बॉर्न हुए होते हैं या जो बहुत पैसे कमाते हैं, उनका अपना एक कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि दे आर रिच. सो एंड सिक्स्थ इज फियर, जो डर होता है. सो डर एक ऐसी चीज है जो हमको थोड़ा ले डूबती है. हर चीज में डर बोलते हैं ना कि द थिंग दैट डजंट टेक अवे योर लाइफ. सो उसके अलावा कोई चीज से डरना नहीं चाहिए. अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर तो नहीं जाएंगे ना. एनीथिंग दैट डजंट किल अस मेक्स अस स्ट्रॉन्गर. जो चीज हमें मारती नहीं है वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है. सो बेसिकली हमें अपनी लाइफ को ये 6 स्ट्रक्चर्स के थ्रू तराशना है, देखना है कि मेरी लाइफ में क्या क्या स्ट्रक्चर्स की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस अफेक्ट हुआ है.
और इस कोर्स में देयर इज दिस एक्शन प्लान आल्सो कि आपको पता चला अच्छा इस स्ट्रक्चर के वजह से मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल गया है, तो मैं क्या एक्शन प्लान करूं ताकि वो जो मेरा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के वजह से। इफ समथिंग एंड देयर इज अ लाइफ स्ट्रक्चर अपीयरेंस आल्सो, आपको लगता है अगर मैं इतनी अच्छी दिखती नहीं हूँ इसके वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लो है, तो उसके भी एक्सरसाइजेस हैं दैट हाउ डू यू कम अप फ्रॉम इट। ठीक है, देन देयर आर फ्यू लॉज, देयर आर सर्टेन लॉज इन लाइफ। जैसे फिजिक्स के अपने लॉज होते हैं ना, वैसे लाइफ के भी अपने कुछ लॉज होते हैं। हम माने या ना माने, लाइफ में जो लॉज होते हैं वो काम करते हैं। There are certain laws like law of attraction, law of concentration, laws of resistance and a couple of other laws जो हमने courses में बताए हैं, हिंदी में बताए, it's very easily understood और उसके साथ साथ action plan भी दिए हैं। If you follow these laws in life, your life is going to change for sure because these are laws. Then there are certain pillars to build your self-confidence. Values, habits and goals. Talking about goals, having goals in life is so important क्योंकि goals का मतलब है, okay, suppose आप एक टैक्सी में बैठे और आपने टैक्सी वाले को बोला ओके भाई साहब, वो बोले कहाँ जाना है मैडम, तो बोले चलो आपको जहां ले चलना है चलो। तो अगर मैं टैक्सी में बैठी और मैंने वो ड्राइवर को छूट दे दी जहां ले चलना है चलो, तो वो कहाँ ले जाएगा, वो तो अपनी मर्जी से, उसको पता ही नहीं कहाँ ले जाना है। सो अगर हमारी लाइफ ऐसी है कि मुझे पता ही नहीं है लाइफ में करना क्या है, जहां लाइफ ले जाएगी मैं वहां चली जाऊंगी, एक वो टाइप की लाइफ होती है। और दूसरे टाइप की लाइफ होती है कि मैं टैक्सी में बैठी, मैंने टैक्सी वाले को बोला भाई साहब मुझे यहाँ वर्सोवा के नाना नानी पार्क में जाना है, तो एग्जैक्टली वो ड्राइवर को पता है कि इसको मैडम को यहाँ बैठ के इधर जाना है, वो मुझे इधर उधर नहीं घुमाएगा, वो मुझे एग्जैक्टली अपने डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा। सिमिलरली this is what having goals in life mean. If I have a goal, my life will take me towards my goal destination. If I do not have my goal, life will go here, there, because where will it take? Because I don't have any goals, right? Second is habits. Habits are very, very powerful. It's an ingredient. हमें पता नहीं चलता, लेकिन एक habit, एक सही आदत, it can bring wonders to our life. सही आदत है, हमें पता है ना क्या रे, you want to talk about habits? Well, कल ही तुम कुछ बोल रहे थे मुझे। Right, so habit inculcate, सही habit inculcate करना बहुत जरूरी, because that is what is like, आप खेत में ये सीड्स डालते हैं ना, तो आपने गोल डाल दिए, अब गोल को थोड़ी खाद की जरूरत है। गोल किसी भी गोल से आप उसको बना नहीं सकते जब तक यू डोंट हैव द राइट हैबिट्स, राइट? इट इज लाइक हैबिट होगी, राइट हैबिट होगी तो ही गोल के अराउंड काम कर सकते हैं। सो इट्स वेरी वेरी सिंपल। खाद, सनलाइट, पानी इज हैबिट। वैल्यूज क्या होती है? वैल्यूज जो चीज होती है ना, वो आपको डिसीजन लेने में बड़ी आसानी कर देती है। अगर आपकी वैल्यू है, जैसे सिंपल सी बात है, कोई डिसीजन लेना है कि यार मुझे ये प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना है, तो आई विल जस्ट चेक माय वैल्यूज। अगर उस प्रोजेक्ट से वो वैल्यूज के अलाइनमेंट है, वैल्यूज पे खरा उतर रहा है, तो प्रोजेक्ट लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। सिंपल सी बात। सो हैबिट्स एंड वैल्यूज एंड गोल्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपको कॉन्फिडेंट बनना है ना लिखने का, और ये जो मैडम ने आपको फ्री कोर्स दिया है, उसमें इन सब चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक्सरसाइजेस हैं, एंड इफ यू फॉलो दीज थिंग्स, होपफुली यू विल डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम दीज थिंग्स। ठीक है? Can I add one more thing? Yes, please. Yes, actually yes. स्टूडेंट को मुझे यही बताना था कि माइक्रोसॉफ्ट के जो सत्या नडेला है, उनसे एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा था कि क्या आप देखते हैं स्टूडेंट्स में कि जब आप इंटरव्यूज लेते हैं स्टूडेंट का, तो बोले कि मैं एक ही चीज उनसे देखता हूँ, वो है कि क्लैरिटी और एनर्जी। जिस स्टूडेंट के पास क्लैरिटी और एनर्जी होती है, वो सुपर स्पेशलिस्ट हो जाता है। हाँ, हम लोगों का मीन्स मुझे स्टूडेंट से यही बोलना था कि लास्ट ईयर के बाद आपको कितनी क्लैरिटी होती है कि मैं क्या करने वाला हूँ। हम जैसे मार्क्स मिलते हैं हमको, वहां से हम डिसाइड करते हैं कि इतने इतने मार्क्स मिले, चलो यहाँ जाएंगे, इतने इतने मार्क्स मिले वहां जाएंगे। तो ये बात सत्या नडेला ने बहुत मीन्स सभी से मीन्स ये यूजफुल कही थी कि माइक्रोसॉफ्ट ने हम टेक्निकल नॉलेज को कम देखते हैं, पर वो जो क्लैरिटी होती है और एनर्जी, कि जैसे आप देखते हैं कि मैं मीन्स सुंदर पिचाई का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं।
तो क्रोम में जो अभी तक जो एक्चुअली रिवोल्यूशंस आए हैं, उन्होंने खाली एक ही प्रोडक्ट पे फोकस किया है कि वो है गूगल क्रोम। तो स्टूडेंट से मुझे यही कहना है कि जब आपके पास गोल्स, हैबिट्स और वैल्यू, ये तीनों चीजें होती है, तभी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। करेक्ट। जो एक्चुअली जो प्रॉब्लम लाइज है वो एक्चुअली ये तीन चीजों में लाइज है। इसमें से कोई भी चीज अगर कम हो तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो सकता है ऐसे। सो यही चीज बोलनी तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये चीज हमने डिटेल में एक्सप्लेन की है कोर्स में एंड सिंप्लीफाइड तरीके से कि आप कैसे एस्टैब्लिश करें ये सारी चीजें। एंड लास्ट स्लाइड, दिस इज मेड बाय दीपक. Deepak keeps telling me Karla, so he can't tell you, so it's not like Kadla लिखा है. ठीक है. ठीक है. Deepak, you want to come back to it? Yes. Right. So. अच्छा, people, this was never a one-way webinar. I want you to talk and interact with us. Come on. Deepak, can you get the people? Before we start the interview thing, I want students to come and speak. Just speak. हा, बोराटे मॅडम, चॅट सेक्शन जर ऍक्टिव्ह करता आला तर म्हणजे बरं होईल, कारण म्हणजे तिथं इन केस मुलांना प्रॉब्लेम होत असेल काही विचारायला तर चॅट सेक्शन मध्ये तुम्ही विचारू शकता क्वेश्चन्स वगैरे की बोलो, we would like to see you. लाइफ में वैसे भी आगे जाके लोगों के सामने बोलना पड़ेगा. Yes, ma'am. Come on, very good. Amita madam is all ready. Anybody wants to ask anything? Life में कुछ भी anything that you want to ask, any doubts you have? लोगों का शर्माना मत कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. लोगों का काम है सोचना, लोगों का काम है कहना. वो हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे. तो आसपास वाले लोगों से भी डरना मत कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे. एक बात बोलता हूँ, जब तक लोग आपसे जल नहीं रहे हैं ना, तब तो कोई फायदा नहीं. जब तक लोग आपके पीछे आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं, तब तो कोई फायदा नहीं है. That's when you are not moving ahead in life. लोग जलते हैं तभी आपके पीछे बोलते हैं, तभी वो आपको पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं. So make sure that people are talking behind your back. अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो do such things that people start talking behind your back. Understood? So go ahead and ask questions. I remember one thing when I used to do modeling. So एक मार्क रॉबिन्सन करके बड़े कोरियोग्राफर थे, तो उन्होंने कहा था कि मुझे पता चल जाता है कि अच्छी मॉडल कौन आई है इंडस्ट्री में. तो बोले कैसे? क्योंकि बाकी लड़कियां उसकी बुराई करने लगती हैं. So जब जिस समझना, जब बाकी लड़कियां बुराई करने लगे, इसका मतलब you are smart enough. You are going ahead. You are going ahead in life. क्योंकि लोग इनसिक्योर हो जाते हैं. ये बात कर रही है, ये इतना आगे जा रही है, ओह ये अपने आप को समझती क्या है, ओवर स्मार्ट समझती है, ब्ला ब्ला ब्ला. Okay, I don't think there are anybody who knows. Nothing? Okay. आपको अगर चैट सेक्शन में पूछना है तो you can ask. सोच के रखना, लिख के रखना. तब तक दीपक is going to take his interview वाला session with you all. Yes. Right. So, first slide, 30 seconds. Do you know what this really means? It means कि आपका CV जो देख रहा है इंसान, they don't really spend more than 30 seconds on your CV before they want to shortlist you. This is an average. It's a very well known and accepted fact. On an average, people spend only 30 seconds on your CV. 2 minutes. 2 minutes is the time. 2 minutes is the time when when somebody is hiring you. In the first 2 minutes, they decide whether they want to go ahead with you or not. That's also a known and accepted fact. And every year, I go to hire from all the IIMs and top institutions. और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है. मैं पहले 2 मिनट में देखता हूँ कोई कैंडिडेट आया, पहले 2 मिनट में अगर मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ तो मैं रिजेक्ट कर चुका होता हूँ अपने माइंड में, और उसके बाद सिर्फ 5 मिनट में और एक्स्ट्रा बात करता हूँ. I ask them to leave. Only when in the first 2 minutes I decide, okay, fine, I want to talk to this person further, that's when the other person has a chance. Okay? 5 months. I don't know what this 5 months was for. I'm really, I'll come back to this later. Okay, here's the thing. Now, ये जो चीजें होती हैं, 30 seconds, 2 minutes, all of this, what are these things? ये है क्यों? और ऐसा होता क्यों है? So, when you want to get into a job, when you want to do something really good with your life, पहली बात तो है getting the right education, and all of you are getting the right education at this, college जहाँ पर आप हैं.
but it's very important that to get अपने लिए दरवाजे खोलने के लिए, to get an interview, the first thing you need is to get the right kind of resume, CV. Okay? अब बोलेंगे, मैंने ये सुना है कि बहुत सारे लोग CV कॉपी कर लेते हैं दूसरों के, इससे बड़ा डिजास्टर कुछ और नहीं हो सकता. So first, if you really want to move ahead in life, ये सारा प्रोसेस है कि गुजरना पड़ेगा. कोई ऊपर से इंद्र भगवान आकर के आपको आशीर्वाद नहीं देने वाले. वो सिर्फ रामायण में होगा, महाभारत में होगा. हम लोग रियल लाइफ में जी रहे हैं, तो यहाँ कोई भगवान आके आशीर्वाद नहीं दे रहे. आशीर्वाद खुद को देना पड़ेगा. So अपना आशीर्वाद अपने ऊपर, और उसमें वो कर्म क्या करने का. You have to have the right kind of experiences. आपकी आज की डेट में पता है क्या होने लगा? आज की डेट में ये होने लगा कि आप इंटर्नशिप कर सकते हैं. आप ऑनलाइन इंटर्नशिप अप्लाई कर सकते हैं. इंटर्नशाला जैसा वेबसाइट है, वहां पर साइन अप करिए, इंटर्नशिप करिए, अपनी स्किल्स बढ़ाइए. आज की डेट में अंग्रेजी बोलना, लिख पाना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई डोंट नो वेदर यू हैव इन्वेस्टेड इन दैट, बट यू इन्वेस्ट नाउ. ओके, सही बात कर पाना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ये समझिए कि जब नौकरी करने जाते हैं, कोई सेल्स में है, कोई कुछ भी कर रहा है, डेली इट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. यू आर आइदर स्पीकिंग और यू आर राइटिंग. इफ यू डू नॉट हैव दीज स्किल्स, देन देयर इज अ प्रॉब्लम. So what I want to say is, first you have to collect your, you need to work on your skills. ऐसे experiences इकट्ठे करने का, और वो experience को फिर you have to put basically in a resume. Resume बनाना बहुत बहुत जरूरी है. अब जैसे क्या होता है, कॉलेज होते हैं तो एक पे से ज्यादा का resume नहीं होना चाहिए, because इतना ज्यादा कुछ है नहीं आपके पास experience. तो सही resume बनाना बहुत जरूरी है. फिर तीसरी चीज होती है कि मैं what kind of job do I want to do. I want to get into a government job, PO करना है, IAS करना है, PCS करना है, क्या करना है, आर्मी में जाना है, फोर्स में जाना है. All of that is great, but if you are not going to those exams, उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है. If you are not going there, if you are going to get into the private sector, then you need to plan. अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला. और रिमेंबर, आज की डेट में हर एक कोने में सबके पास इंफॉर्मेशन है, और वो लोग भी काम कर रहे हैं. सो इट्स यू आर ऑलवेज इन कंपटीशन आज की डेट में दिखाई नहीं देता है. कंपटीशन इनविजिबल है, बिकॉज ऑल ऑफ दोस पीपल आर नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, दे आर ऑन देयर फोन्स एंड लैपटॉप्स. ठीक है. दूसरा, लेकिन कंपटीशन से डरो मत, क्योंकि जो मासेस है ना, वो लोग इतना गाढ़ा काम नहीं करते. अगर आप थोड़ा भी अपने आप को सही डायरेक्शन में लेके जाके डीप में काम करेंगे ना, यू विल डेफिनेटली मूव अहेड देन मोस्ट ऑफ देम, राइट? And then the another thing is networking, whether you network or not. आज की डेट में platforms है, LinkedIn सबसे powerful platform है. You need to get on LinkedIn, you need to connect with people. उसके लिए भी एक there is a modus operandi, मतलब उसमें भी एक तरीका होता है लोगों से कनेक्ट करने का. You can't just send a random connection request. कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा. मेरे को दिन की 30-40 रिक्वेस्ट आती हैं, but I don't accept everything, because only when somebody writes something, why do they want to do this, why do they want to connect with you, उनको क्या मिलेगा. So that's when I say, okay fine, I'll connect with you. Poor communication skills मैं इसके बारे में पहले ही बात कर. As far as networking is concerned, एक होता है LinkedIn और social media में, एक होता है real networking also. आपके पहचान के ऐसे कुछ लोग होंगे जो अच्छा काम कर रहे होंगे, अच्छी जगह काम कर रहे होंगे, कोई ऑफिस में, कोई कंपनी में. See to it that you talk to them, और उनके काम के बारे में जानो जितना हो सके. फिर कहीं ना कहीं ओपनिंग मिल सकती है पर्सनल नेटवर्क, पर्सनल पहचान के थ्रू भी. Now, how to know what skills are required for a certain thing, right? आपको कैसे पता चलेगा? आप लोग, कुछ लोग BCA कर रहे हैं, कुछ लोग कॉमर्स कर रहे हैं. तो पहली बात तो ये बहुत जरूरी है to give yourself more exposure and understand कि आजकल के जमाने में किस तरीके के काम हो रहे हैं दुनिया में. अब जैसे बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ. You are, let's say you are in computer applications, या आप प्रोग्रामिंग करना जानते हैं, then programmers के लिए बहुत जॉब्स हैं, दुनिया भर के जॉब्स हैं. You can get into the big IT companies, or you can get into smaller IT companies, or you can get into startups. Startups बहुत हैं. मतलब every startup needs people. Really they need people, because startup में कम लोग होते हैं. हमारे startup में कम लोग हैं, but लोग हैं वो काफी ज्यादा काम करते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि you really need to know कि कहाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, एंड देन अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ उनके लिए स्किल्स क्या हैं. और मैं बताऊं, चाहे प्रोग्रामिंग हो, चाहे नहीं हो, चाहे अकाउंटिंग आती हो, चाहे नहीं आती हो, अगर आपको ढंग से कम्युनिकेशन करना नहीं आता है, देन इट इज गोइंग टू बी टफ फॉर यू. तो कम्युनिकेशन पे जरूर ध्यान देना चाहिए. ओके, ठीक है. सो you need to work on finding the right kind of skills that are required to for the kind of job you want to get into. अब आपको अकाउंटिंग करनी है, तो then obviously you need to know accounting well. You need to know the accounting standards.
you need to know the practices that are followed, और प्रोसीजर क्या होता है, एक सीए की फर्म में क्या होता है, क्या क्या चीजें करते हैं, क्या किस किस तरीके से टैक्स फाइलिंग करते हैं, कंपनी की टैक्स फाइलिंग क्या होता है, सब आपको जानना पड़ेगा, राइट? सो you really need to know what skills are needed to for what you want to do. दूसरी चीज थी रेज्यूमे. पूरा रेज्यूमे इज ऑफन द फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोसेस. ये फिल्टर होता है. आप मुझे भारत में ना बहुत जरूरी है ये समझना कि आप हमेशा एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस से जाएंगे. हम लोग कनाडा नहीं है. कनाडा की पॉपुलेशन कितनी है आपको मालूम है? मुश्किल से 2 करोड़ पॉपुलेशन है. ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन में 2 करोड़. ऑस्ट्रेलिया इज दैट बिग, इट्स स्मॉल, दैट इज रियली बिग इन साइज, बट 2 करोड़ की पॉपुलेशन है. It is a thing that, you know, it is said that India adds an Australia to itself every year. हम इंडिया में एक साल में हमें ऑस्ट्रेलिया जितनी पॉपुलेशन ऐड हो जाती है अपनी कंट्री में. just think about it. It's unbelievable. आजादी के टाइम पे हमारे देश की पॉपुलेशन थी 30 करोड़ और आज के जमाने में 130 करोड़. 70 साल में हम लोगों ने 100 करोड़ को ऐड कर लिया अपनी कंट्री में. Just think. The point I'm trying to make is that, you know, आप जहां भी जाएंगे, कुछ भी करने जाएंगे, आपको भीड़ मिलेगी, लाइन मिलेगी. लाइन से अलग कैसे होना है, ये इंपॉर्टेंट है. ये मैं तेरी कहानी सुना रहा हूँ यही समझाने के लिए कि बॉस कहीं भी जाओगे ना, you're going to get into a line. चाहे कितनी बड़ी चीज हो, चाहे कितनी भी छोटी चीज हो. कैट देना है तो लाइन लगी हुई है, जेई देना है तो लाइन लगी हुई है, पीओ का एग्जाम देना है, लाइन लगी हुई है, हर जगह लाइन है. तो इसीलिए जो चीजें चाहिए होती हैं और अलग होने के लिए सबसे पहले से रेज्यूमे है. तो अगर रेज्यूमे अच्छे से नहीं बनाया तो लाइन से आपको बाहर निकाल देगा, भीड़ में आवाज. तो भीड़ से अलग रेज्यूमे बनाना पड़ेगा. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर हेड कि यार ये रेज्यूमे ये चीज डालनी है, रेज्यूमे अच्छा ऐसे बनता है. वी विल टॉक अबाउट दैट. डूज एंड डोंट्स ऑफ अ रेज्यूमे. पहले तो क्रिस्प होना चाहिए. बहुत सारे लोग मैंने देखा है 2-2, 3-3 पेज का रेज्यूमे बना देते हैं. नोबडी इज इंटरेस्टेड. पहले बताया ना, रेज्यूमे देखने में लोग कितना टाइम स्पेंड करते हैं, 30 सेकंड्स. ट्रस्ट मी, nobody's going to spend more time than that. और कुछ लोग को ऐसे अपने बारे में लिखते रहते हैं, उनको लगता है जितना भरा हुआ होगा उतना अच्छा लगेगा. That's not the case. So you have to make a very crisp resume. पार्ले जी खाते हैं ना, तो जब पैकेट नया खुलता है और कड़क होता है तभी मजा आता है ना. जो उसमें क्या बोलते हैं, जब सील जाता है ना, क्या मनता सील जाते तो मैं शब्द भूल गई. थोड़ा सा मॉइस्चर लग जाता है ना, तब इसको खाने में मजा नहीं आता. It's just like that. Include relevant experience and projects for the job. अब कोई प्रोजेक्ट है, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं कॉलेज में, उसके बाहर इंटर्नशिप की है, तो उसके रेलेवेंट, जो उससे रेलेवेंट है. आप मान लो टीसीएस में अप्लाई कर रहे हो, आपने कुछ टेक प्रोजेक्ट किया हुआ, कुछ वेबसाइट बिल्ड की हुई है, कुछ भी किया हुआ, तो आप उसको ऊपर रखिए. ठीक है. आपने एनजीओ के साथ काम किया है, उसको ऊपर मत रखिए, उसको बाद में डाल दो. आपने एनजीओ के लिए कुछ किया है, लोगों की मदद की है, वो नीचे रखो. टीसीएस के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है. वो अच्छा है कि आपकी, you know, it will show that you have a broader personality. That's a very good thing. जो इम्पोर्टेंट है वो ऊपर होना चाहिए जॉब के हिसाब से. आप किसी एनजीओ में अप्लाई कर रहे हैं आप करने के लिए, तो वो एनजीओ वाला जो एक्सपीरियंस है वो ऊपर कर दीजिए. फिर आप ये डाल दीजिए कि मैं प्रोग्रामिंग भी कर लेता हूँ, तो मैं आपके यहाँ ये भी कर दूंगा. समझ में आ रहा है? अवॉइड इंक्लूडिंग अपना. कुछ लोग अपना फोटो डालते हैं, फोटो डालने की जरूरत नहीं होती एक्चुअली. अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना 50 तरीके की फॉर्मेटिंग कर देते हैं, अलग अलग रंग लगा देंगे, इटैलिक्स कर देंगे, दुनिया भर के फॉर्मेटिंग स्टाइल्स एक ही डॉक्यूमेंट डाल देते हैं. डोंट डू दैट. यू रिमेंबर कि कोई इंसान आपका डॉक्यूमेंट पढ़ रहा है ना, तो उसकी आंखों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये क्या है, तो 30 सेकंड से कम और भी कम लगा देगा. आने पूरा 10 सेकंड में हटा दो, नहीं चाहिए. एज आई सेड, भीड़ है. इंसान जो आपको चुन रहा है ना रिज्यूमे, उसके पास कमी नहीं है. रिमेंबर. सो एक सेकंड को भी ऐसा लगा मजा नहीं है, हटा दो. That's how it happens, really. So you have to really be careful. Action verbs make use of action verbs. You know, led this, मैंने ये किया, you know, the way everything I XYZ did this project जिससे इतना फायदा हुआ कंपनी को, या मैंने कॉलेज में ये प्रोजेक्ट किया, कॉलेज में ये फायदा हुआ, मैंने कॉलेज की वेबसाइट बनाई, इतनी एप्लीकेशन पढ़ दी. I did this, right? Action verbs, right? So build or program or XYZ. So you understand the action verbs, right? Talk about the results achieved with your project. सही मैंने बोला, right? So कोई project है, उससे कुछ ना कुछ result होता है, right? So आपने किसी startup में कुछ project किया और उससे कुछ फायदा हुआ startup को. कुछ मान लो आपने कोई एक project किया जिसमें सारे जो startup के customers हैं
उनके साथ एंगेजमेंट बढ़ाना है, तो उसके लिए आपने कुछ प्रोवाइड किया तो एंगेजमेंट बढ़ गया, मतलब 10% एंगेजमेंट बढ़ गया, तो आप उसके बारे में बात करिए कि मैंने काम किया और उससे ये फायदा हुआ. दैट इज व्हाट इज ऑफ वैल्यू. ऑर्डर ऑफ थिंग्स, लेटेस्ट फर्स्ट और व्हाट इज मोस्ट रेलेवेंट फॉर द जॉब फर्स्ट. जनरली क्या होता है कि लेटेस्ट जो चीज होती है ना उसको ऊपर लगा देते सबसे पहले, क्योंकि नजर उस पर जाए, है ना. कोई डॉक्यूमेंट बीच से नहीं पढ़ता, ऊपर से लोग पढ़ते हैं. मतलब 10th के मार्क्स ऊपर नहीं लगाने, 10th के मार्क्स मत ही ऊपर नहीं लगाइए, वो नीचे लिखिए. आपने क्या किया है, आपके अभी आप ग्रेजुएट हो रहे हैं BCA से MCA से, तो आपने वो नंबर लगा दीजिए ऊपर कि ये यहाँ से इतना किया है, और इमीडिएटली आफ्टर दैट क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. It's very important to do internships, people, because am I right? Yeah, absolutely. Your experience really matters, because for us also, for Future Tayari, we get a lot of resumes for being a startup. So हम देखते हैं कि लोगों का experience क्या है, उससे बहुत ज़्यादा trust और भरोसा आता है. So अगर आप fresher हैं तो maybe starting के महीने अगर आपने free में भी किया है just to add value or to learning, और maybe बहुत कम small amount पे किया, but it will add a lot of value to your resume, to you in fact, to work with founders and doing different things. Yeah. So these are some of the things about resume, और अगर आप थोड़ा search भी करें तो you will understand, और then I mean honestly I didn't want to talk, but we have a program on how to crack the interview. उसमें इसको बहुत अच्छे से cover किया गया है. Yeah, we have a course in Future Tayari, how do you crack an interview. उसमें उन्होंने एक एक्सपर्ट ने बहुत डिटेल में कवर किया है. Yeah. So यहाँ दो एग्जांपल्स, अब ये बैड रिज्यूमे और गुड रिज्यूमे, जो राइट में आपको दिख रहा है वो दैट्स गुड रिज्यूमे, उसमें चीजें की हैं एक्चुअली, और बैड रिज्यूमे उसमें बहुत सारे ग्राफिक एलिमेंट्स डाल दिए हैं, उसको कोई फायदा नहीं है ग्राफिक एलिमेंट्स का, बिकॉज आजकल कुछ जगहों पे ऐसा होने लगा है कि these resume are put into a system. So machine learning based systems हैं जो पूरा पढ़ करके मैचिंग करके वो दिखा देंगे ये सिलेक्शन है. अगर उसमें फंस गया और ऐसा रिज्यूमे बनाया है लेफ्ट वाला तो खत्म है, कोई मतलब ही नहीं. और ये सब ग्राफिक एलिमेंट्स नहीं डाले जाते. दिस विल बी अनप्रोफेशनल. द मोमेंट आई विल सी दिस रिज्यूमे आई से गेट लॉस्ट immediately. Okay, so it's very very important that you don't add graphic elements. और ये राइट वाले में भी ये जो वर्टिकली जो दूसरा कॉलम है उसको करने की जरूरत नहीं. योर नेम वाला जो बड़ा कॉलम है उसी में चीजें लाइन से लिख देना. दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग. वी कैन शेयर सम मोर रेज्यूमे फॉर्मेट्स विद यू लेटर. तेजस विल सेंड. व्हाट डज अ टारगेटेड रेज्यूमे मीन, राइट? ये टारगेटेड रेज्यूमे की मतलब वही है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं. आप मान लो टीसीएस में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो रोल है हमेशा एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है. जॉब डिस्क्रिप्शन आप समझें कि क्या है, इसमें क्या क्या चीजें मांगी, तो उसके हिसाब से रिज्यूमे बनाइए. और रिमेंबर, झूठ बोलने की जरूरत नहीं कभी भी रिज्यूमे. अगर आपने झूठ किया वो बाहर निकल के आ जाएगा, तुरंत निकल के आ जाएगा. क्योंकि रिज्यूमे में लोग अगर मान लो सेलेक्ट कर लिया, बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिख दी, और जब उसके बारे में पूछा तो फिर क्या करोगे? तो कहने का मतलब ये कि you need to be very well prepared on everything that is written on your resume. You need to be able to justify those things. अगर वो नहीं होगा तो लोगों को पता चल जाएगा. तीसरी चीज, आपको कंपनीज टारगेट करनी पड़ेंगी जिसमें आप काम करना चाहते हो. छोटी कंपनी है, स्टार्टअप है, किस एरिया में है, तो उसके हिसाब से देन यू कैन. आजकल की डेट में इट हैज बिकम really easy. There are many job portals. There are many Facebook communities. We have mentioned the job portals in the courses. Right now he might not remember, but बहुत ज़्यादा job portals हैं, वो सब courses के अंदर हैं. हाँ. So job portals हैं, Facebook पे groups होते हैं, वहाँ पर बहुत information share होती है. So you need to know all of those for the kind of area that you want to build your career in. ठीक है. और रिज्यूमे को कभी भी एक बार नहीं, रिज्यूमे बनाने में थोड़ा टाइम लगना चाहिए. आप बनाया फिर रख दो, अगले दिन फिर से देखो उसको. कहीं भी लंबी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है. It should be sharp, crisp, and to the point. Can people have different resume for different profiles? Yeah, absolutely. Industry specific resume. ठीक है. और ये सारी this is about Future Tayari. I think okay, this is the crack the interview course that we have on Future Tayari. Yeah, so really don't want to kind of tell you about Future Tayari. Shraddha ने पहले ही बताया हुआ है. You should, you can visit the website and just see what is Future Tayari. Yeah. दूसरा चीज ये है कि these are some of the testimonials, and the point is कि Future Tayari platform we have made it for a certain purpose.
और आज हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर दिस वेबिनार इज ओवर, आप जितने लोग अटेंड कर रहे हैं, यू विल गेट अ फ्री एक्सेस टू द कोर्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, जो श्रद्धा मैडम ने किया हुआ कोर्स। उस कोर्स में आपको बेसिकली लेसन्स होंगे। I'll just show it to you. Give me a second. You can just go on futuretayari.com. Just log on to Future Tayari, और आपको what you need to do is, आप लोगों को सब कुछ जिसको भी करना है, जो स्टूडेंट्स हैं जिनको एक्सेस करना है, जो इसके लिए साइन अप है, तेजस ने लिस्ट भेजी थी, यू विल हैव टू गो टू लॉगिन में फॉरगॉट पासवर्ड करना होगा। ठीक है, फॉरगॉट पासवर्ड करके आप अपना ईमेल एड्रेस जो आपने सबमिट किया था कॉलेज को और जो हम तेजस को गया है, वही सेम ईमेल एड्रेस आप यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, और यहाँ से सेंड रीसेट लिंक भेज दीजिए। तो आप फिर अपने ईमेल इनबॉक्स में जाइएगा, वहां पर एक रीसेट लिंक आया होगा। ओके, रीसेट लिंक आया होगा, तो रीसेट लिंक आ जाएगा और वहां पर लिंक को मैं दिखा देता हूँ कैसे। इंटरनेट। अल्पिन ने ये भी कहा था ना, we can check on the Anyway, so can you show them the website meanwhile? Yeah. So for example, this is the website. ये वाला कोर्स आप सबको फ्री में दिया जा रहा है. Okay. Right now we are running a New Year offer, but all of you are getting it for free. So just go through it. कॉलेज के टॉपर को देखकर, सबके सामने हाथ उठाकर सवाल पूछने वाले को देखकर कभी ऐसा लगता है कि कहां से आया है इतना कॉन्फिडेंस इसमें। ये बात सच है कि मार्क्स अच्छे आने से करियर में अच्छा करने की चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एकेडमिकली सक्सेसफुल होने से कॉन्फिडेंट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है। When I started my career with Miss India contest and then as a model and an actor, I went through a lot of ups and downs. There were days when I used to feel very low and sad. मुझे लगता था कि I'm not good enough. मैं हर बार अपने आप को दूसरों से कंपेयर करती थी और मुझे लगता था कि बाकी लोग मुझसे बेटर हैं. I used to feel that what am I doing? मैं कर क्या रही हूँ? और आपको पता मुझे ऐसा क्यों लगता था? Because I was the person with very low self-esteem and absolutely no confidence. I was lost. तब ऐसा लगता था कि काश अगर ऐसा कोई होता तो मुझे सही गाइडेंस देता, सही विजडम देता, डायरेक्शन दिखाता, so my life would have been different. I would have grown faster and better. ये कोर्स इसी बारे में. It is about having that supreme confidence and having a great sense of self-esteem. असली ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो अंदर से बदलाव लाने की जरूरत है. अपना डीएनए बदलना पड़ेगा. It's a game of confidence and self-esteem. किसी की भी कॉपी नहीं, अपना बेस्ट वर्जन बनना. सीक्रेट ये है कि अपना ट्रू पोटेंशियल जानना और उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर पाना. Remember, you are the hero of your own story. Let us bring that hero out with our course on confidence and self-esteem. Welcome to Future Tayari. So, you can see यहाँ पर this is how it will play. Confidence होता क्या है? Right? It's a quality. और It's a state of mind.
इसमें यू कैन जब आप आगे जाएंगे यहाँ पर कुछ PDF भी हैं, जब आप ये चैप्टर्स खत्म कर लेंगे तो एक्सरसाइज आ जाएगी यानी क्विज आ जाएगी. तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट विल हैपन. और एज आई सेड, लॉग इन करने के लिए यू for all of us you'll have to go to futuretheory.com, just log in, do a forgot password, अपना ईमेल एड्रेस डालिए, आपको ईमेल एड्रेस आपको लिंक आएगा, वहां पे पासवर्ड रीसेट करने के लिए लिंक आएगा, आप पासवर्ड रीसेट कर दीजिए एंड पासवर्ड रीसेट करने के बाद all of you will be able to access, और वहाँ डैशबोर्ड में आपको एक करके डैशबोर्ड करके जगह, वहाँ डैशबोर्ड में आपको दिख जाएगा आपका कोर्स एंड यू कैन एक्सेस द कोर्स. एग्जैक्टली आप लोग शायद हॉटस्टार देखते होंगे फोन पे, नेटफ्लिक्स देखते होंगे, तो बिल्कुल उसी तरीके से है. और एक बार कहीं पॉज कर दिया तो वहीं से कोर्स वापस चालू होगा, ठीक है ना. क्योंकि देयर इज नो प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी हाई टेक प्रोडक्ट, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी एंड दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम अस टू यू. And any doubts and any problems, you can Instagram us. You can follow us on Future Theory on Instagram. खुद लोगों को we access the Instagram handle. तो कुछ भी problems है, we'll be able to solve that. Yeah. Cool, Tejas. I think we are done, and it's already 1 o'clock. People, I want you to speak to us. Please unmute yourself, speak, let me know. मुझे ये जानना है कि आपके real what problems do you face, या ऐसे क्या courses हैं जो आप जिसके बारे में और जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या क्या चीजें आपको सही में value addition करेंगी. What do you think? चॅट सेक्शन मध्ये तुम्ही आंसर विचारलं तरी चालेल. चैट सेक्शन में भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, पर एक पूछिए कुछ क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में है तो. ओके, कोर्स कैसे एक्टिवेट करना है सब स्टूडेंट को समझ में आया है कि नहीं? चैट सेक्शन में आप रिप्लाई दो कि समझ में आया है कि नहीं. मैं पहले फ्यूचर तैयारी का लिंक भी भेज देती हूँ चैट सेक्शन में, ठीक है? पेजेस आप भेज दोगे? हाँ, 1-2 मिनट यहाँ पे. वहां पे गूगल में साइन इन करके फॉरगॉट पासवर्ड करना है, आपको मेल आ जाएगा. हाँ मैम, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, कोर्स फ्री कितने दिनों के लिए? कोर्स आप वी वांट यू टू कंप्लीट इट इन द फर्स्ट वीक इटसेल्फ. हम आप इसको 2 हफ्तों के लिए फ्री रखेंगे. द थिंग इज कि कई बार चीजें फ्री होती है तो लोग उसका वैल्यू नहीं समझते हैं और उसको कंप्लीट नहीं करते हैं. वो वी वांट दैट यू गो थ्रू इट, यू कंप्लीट इट एंड यू बेनिफिट फ्रॉम इट, व्हिच इज व्हाई वो 2 हफ्ते तक रहेगा. करेक्ट. और मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूंगा कि वो वहां पे जो एक्सरसाइज वगैरह दी है, वहां पे जो एक्शंस प्लान दिए, उसको थोड़ा सीरियसली आप कंप्लीट कीजिए. क्योंकि ये जो सॉफ्ट स्किल का एरिया है ना, ये ऐसे टेक्निकल एरिया से नहीं, ऐसे नहीं है कि चलिए ये मैं मॉड्यूल कंप्लीट करता हूँ तो मेरे पास ये स्किल्स आ जाते हैं. आप जितना टाइम उस एक्शन प्लान्स पे देंगे, जितना टाइम वो एक्सरसाइज पे देंगे, उतना वो स्किल्स आपका बढ़ता जाएगा ऐसे. सो ये मैंने पर्सनली फील किया, क्योंकि जब मैंने लिंक्डइन से किया था, ये हमारा प्लेटफॉर्म लॉन्च होने से पहले, तो वहां पे क्रिटिकल थिंकिंग का एक कोर्स था. तो उन्होंने यही बताया था कि सॉफ्ट स्किल का जो स्किल है, मीन सॉफ्ट स्किल जो एरिया है, वो आप जितना एक्शंस प्लान, जितना वो अपने डेली रूटीन में इंप्लीमेंट कर देंगे, उतना वो एक्चुअली डे टू डे बढ़ता जाएगा. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ. और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ये हिंदी में मिल रहा है, मीन्स आपको समझने में, वो इम्प्लीमेंट करने में कोई तकलीफ नहीं आएगी. तो मुझे बच्चों से यही कहना है कि आप ज्यादा से ज्यादा उसका उपयोग करें और इम्प्लीमेंट करें डे टू डे लाइफ में. और अभी जो कोर्स आने वाले, जो ऑलरेडी कोर्सेज हैं, वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर योर ड्रीम जॉब, ये कोर्स है. 3rd कोर्स है एटिकेट इन ग्रूमिंग फॉर अ सक्सेसफुल करियर, जिसमें हम पूरा एटिकेट के बारे में बता रहे हैं और आपकी ग्रूमिंग के बारे में बता रहे हैं कि आपको इंटरव्यू में, ऑफिस में एग्जैक्टली क्या पहनना है, कैसा बिहेव करना, लाइक सर से पैर तक आपके बाल कैसे होने चाहिए, कपड़े कैसे होने चाहिए, शूज कैसे होने चाहिए, कलर वाला हर चीज. एंड क्लोथ्स नीड नॉट बी, महंगे कपड़े की जरूरत नहीं है, पर वो सही कपड़े होने चाहिए.
आपका बिहेवियर बहुत सही होना चाहिए, ऑफिस के क्यूबिकल से लेकर डाइनिंग रूम तक, ये सारे डाइनिंग एटिकेट वो सारा एक्सप्लेन किया है इस वाले कोर्स में। फिर एक क्रैक द इंटरव्यू जो कोर्स जिसने लिया है वो एक एक्स इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और अभी वो वर्ल्ड के टॉप 5 MBA स्कूल्स में MBA कर रहे हैं एंड उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, तो उन्होंने पर्सनल बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सारे अपने एक्सपीरियंसेस और सारी डूज एंड डोंट्स सब बताए हैं उस कोर्स में। सो एवरीथिंग इज वेरी प्रैक्टिकल इन ऑल दीज सेक्शंस। यस एब्सोल्युटली। और एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए ये आप यहाँ पे आप सोचेंगे ये प्रमोशन वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप देखेंगे तो एक कोर्स की कीमत हमारे एक मोबाइल के रिचार्ज की जितनी है। जितना आप मंथली रिचार्ज मारते हैं ना मोबाइल में, उतने एक एक्चुअली इतनी लोएस्ट प्राइस एक्चुअली कोर्स की। एक्चुअली ये मैंने मैम से जब उनको बोला था कि जो हमारे एक्चुअली फाइनेंशियल थोड़ा लो एरिया है उनके लिए एक्चुअली सॉफ्ट स्किल उनको एक्चुअली यूज करने के लिए इजी जाए, इसलिए हमने एक्चुअली इतने कम प्राइस पे इनको रखे हैं। तो देखिए आप साइट पे जाके देखिए, ये फ्री कोर्स देखिए, पर आपसे ये मैं यही कहूंगा कि वो थोड़ा सीरियसली आप कंप्लीट कर दीजिए कि वहाँ के जो एक्शंस प्लान और जो मेथोडोलॉजीज वहाँ पे दी है वो डे टू डे यूज करिए, और जैसे आप यूज करना शुरू कर देंगे आपको उसकी इफेक्टिवनेस एक्चुअली आपको पता चल जाएगी ऐसे। ओके, सो 2 मिनट में आपको फिर से एक टाइम देता हूँ कि किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि रादर देन खुद को अनम्यूट करने से। ठीक है। और इफ यू हैव एनीथिंग यू कैन फ्यूचर तैयारी के इंस्टाग्राम में भी यू कैन फॉलो अस एंड यू कैन इनबॉक्स योर क्वेश्चंस। या हॅलो सर, हा मी ते साइन इन केलं ऍक्च्युली, हा पण ते इनव्हॅलिड ईमेल आयडी म्हणते आणि पासवर्ड। आपको पासवर्ड रीसेट किया आपने? रीसेट नहीं हो रहा है वो। आपको ईमेल आएगा, रीसेट नहीं होगा। आपको ईमेल देखिए, जब आप रीसेट करेंगे तो आपको वापस अपने इनबॉक्स में जाना होगा, देखना होगा एक पासवर्ड रीसेट का ईमेल आएगा, उसमें लिंक रहेगा, वहां से आप रीसेट करिए। क्या आपने प्रोसेस पूरा मैडम? हाँ मैडम, हाँ एक्चुअली ये वेबिनार खत्म होने के बाद आपको एक ईमेल आएगा, हाँ उसके बाद में वो प्रोसेस आप शुरू कर सकते हैं ऐसे। ठीक है ठीक है। हाँ यस यस। के बाद आने Hello, Tejas, I'm explaining the process once again. Please just come on and please, do not correct it. What I'm saying is, everybody has to go. उनको email नहीं आएगा. There's a problem with the email. Okay. Everybody has to go. जैसे मैंने दिखाया था, futuretayari.com साइन इन करिए। साइन इन में फॉरवर्ड पासवर्ड करिए। जब फॉरवर्ड पासवर्ड करेंगे, ईमेल एड्रेस अपना डालना होगा और वहां से फिर then they will get an email to reset the password. Okay, sure, कोई बात नहीं। और मैडम आपने, अमिता मैडम आपने ये प्रोसेस किया जैसे मैंने बताया था? हाँ कर रही हूँ सर अभी। तो आपने कहा ना इनवैलिड आ रहा है, इनवैलिड तो आएगा नहीं क्योंकि जब तक आप रीसेट नहीं करेंगे तब तक वो इनवैलिड ही होगा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू डू साइन अप। फिर उसका फॉरवर्ड पासवर्ड आपने प्रेस किया? हाँ कर रही हूँ सर। हाँ, फॉरवर्ड पासवर्ड प्रेस करिए, उसके बाद वो अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, पूछेगा और वहां पर सेंड द रीसेट लिंक करके आएगा, राइट? तो रीसेट लिंक आपके ईमेल जो आपका इनबॉक्स है वहां जाएगा, वहां पर जाइए, लॉगिन करिए, वापस रीसेट करिए पासवर्ड। ओके सर। तो कहीं भी पासवर्ड भूल जाते हैं ना, तो यही करना पड़ता है। गूगल पासवर्ड भूल जाए, कोई पासवर्ड भूल जाए, या फिर रीसेट द पासवर्ड, रीसेट लिंक जाता है। Cool. Let me know, Tejas. Anything else, or we can? It's already 1:10. Huh? Yes. People, are there any more questions? I don't think there are any questions. No questions, right? Can we leave? Okay, ma'am. हाँ या Ma'am, thank you for both of you.
Namrata, you were very good the way you conducted the introduction. Thank you very much. And it is definitely will help students in rural area with confidence. They can request you because आप लोग एक ही रूम में बैठे हैं और सबका एक साथ ऑन है, so can I request others to unmute themselves? इसलिए वो आवाज एको आ रही है. Yeah. Madam, thank you so much for the valuable information and also sir, thank you so much. आपने हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है जिससे कि हम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं और हमारा जो सेल्फ स्टीम है वो भी बढ़ा सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर द न्यू कोर्सेस. I'll definitely join the course. Thank you so much, ma'am. Achha, listen, I forgot to tell you, we have courses and also there are a lot of blogs and vlogs. So I want you all to form a habit कि आप regularly blogs और vlogs को, those are free of charge. You don't have to pay for blogs. So वो blogs के साथ साथ काफी videos भी हैं. So make sure that you go through that and that will add a lot of value. Of course, internet पे सब कुछ है, available है, पर वो समंदर है. यहाँ पर सब चुन के डाला है, so you will not have to search. Just follow what is being said, right? So visit the blog section on the website. Yeah. Thank you, ma'am. After this beautiful and fruitful session, let's move on to the final destination of the program, vote of thanks. Now I request the head of department of BCA department, Ms. Anas Radem, for vote of thanks. Thank you, Shivani. May I audible? Good afternoon, all. It is an honor for me to express my gratitude to everyone present here on this virtual platform of webinar on importance of soft skill in today's age and time. On behalf of Rayat Shikshan Samstha's Arts, Science and Commerce College, Raman Nagar, Burli, I take this opportunity to propose vote of thanks to those who have directly and indirectly contributed to this webinar organized by our BCA department in collaboration with IQAC. At the outset, I thank resource person of first session, Mr. Deepak Tomal sir, for taking out time from his busy schedule and enlightening us with the knowledge. Thank you so much, sir. Your lecture gave deep insights into the topic and also revealed some interesting facts about the details of resume building process and action plan to land an interview. Today's lecture was full of enthusiasm and real informative, and I am pretty sure the precious knowledge that you gave us will definitely help in students and future of our students. I also thank you speaker of second session, Ms. Shraddha Musre ma'am, for her knowledgeable talk on current industry demand for soft skills, why training of soft skills is important in the post-COVID world. Your excellent presentation has made this seminar interesting and meaningful. I express our profound gratitude to our beloved principal, Dr. L.D. Kadam sir, for presiding this program. I am happy to express vote of thanks to our organizing committee for making this seminar a great success. I would like to thank all teaching, non-teaching staff and students of our college of their cooperation. Once again, I thank you for all cordial cooperation. Thank you. Thank you so much. Jai Hind, Jai Karmavir. Thank you, Amitabh. Thank you. Thank you very much, ma'am. Now I request to all the virtual participants to fill up the feedback form, which is mandatory to all for e-certificate. Overall to Sasani sir. Any problems, please get in touch with Tejas and we make sure that it is done. Okay? Cool. Thank you, Tejas.